So in the last class, we started discussion regarding data types, where we saw that we have various data types. In order to store them, uh, it's them in sort different data. So dear students, please try to understand whatever I'm going to tell you now. We have different types of data. Means if you'll see anything that is done in a computer, you'll find that we input something, then computer process it, gives output. And while we input something, let us take any example. Let's take an example of banking. If suppose we are handling banking system with the computers, then what we are doing? What what are the basic things that we do in a bank? This is just one of the example. We can take any example, and you'll find these common things are happening there. First, suppose that in bank you want to open an account. So for account opening, uh, through a computer, if you're opening an account, then the person who is responsible for opening your account, he does what? He takes the documents, he takes the form that you have filled up with a pen, paper and pen, and then he feeds everything that is mentioned in the form that you have filled up in his system, in his computer. What does he feed? He feeds your name, your parents' name, your address, your date of birth, and such relevant details, and the amount, the sum of money that you are depositing there. This is one of the example. Now let us come to the railway reservation system. I'm talking about the systems which are vastly used in our country, in all the countries, of course. Railway reservation system, airline reservation system. Most of you might have a booked ticket for railways, or you might have get it booked from somebody else. But the thing what I would like to tell you is, first when you go for booking a ticket, then you first find the train. भाई कौन सा train, मान लो you have to go from Ranchi to Delhi, then you find a train first of all. How do you find? There is a software which helps you to do that. You find, you write from where you have to go, to which destination you have to reach, and then the system generates a report where it shows the number of trains that run from this particular location to that particular location, and from there you choose any one. Then you feed your detail like your name and your age and another details. Then you pay the sum of money using net banking or any other payment sources, and then your ticket get booked. The same way, if you'll find, then you'll see, look at any business, a large business enterprise, large. What you'll find? The business is going on. What does the business contain? The sale and purchase of the things, where we need to what input the quantity, the amount, and all these stuffs are going along. तो यहाँ पर जो कॉमन बात आपको ध्यान से समझने वाली है वो ये है कि चाहे जो भी सॉफ्टवेयर हम काम कर रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं, उसमें आखिर कौन कौन डेटा रहता है, आखिर रहता क्या, हम क्या फीड क्या करते हैं. तो जब आप गहराई से सोचोगे, गहराई बहुत ज्यादा गहराई से भी सोचने की जरूरत नहीं है, जब आप सिर्फ सोचोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई कहीं भी हम किसी चीज का नाम वाम डाल रहे हैं, और उसका प्राइस डाल रहे हैं, एज डाल रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, सैलरी डाल रहे हैं, वेजेस डाल रहे हैं, एक्सपेंसेस डाल रहे हैं, इनकम्स डाल रहे हैं, टाइम डाल रहे हैं, डेट डाल रहे हैं, और क्या डाल रहे हैं, किराया डाल रहे हैं, कहाँ से कहाँ जाना है ये डाल रहे हैं. तो ये सब किस चीज से बनता है? तो ये सब सिर्फ दो चीजों से बनता है. एक है अक्षर, कैरेक्टर्स, द लेटर्स A to Z and other punctuation marks, symbols, comma, full stop. दूसरा है नंबर्स. तो अक्षरों और नंबरों को मिला करके हम किसी भी प्रकार का डेटा जनरेट कर सकते हैं. आप गौर करिएगा तो आपको समझ में आएगा. यस. और सी एनी बुक, 2000 पन्ने का किताब खोल के देखो क्या है उसमें, अक्षर और नंबर से ही तो वो बना है. तो ये जो है, ये मुख्य दो तरह का डेटा हमारे पास है, एक अक्षर और एक नंबर. ये मैंने आपको पहले भी बताया है. फिर एक और तरह का डेटा होता है जिस बारे में हमें नहीं पढ़ना है, मगर आप चाहें तो खुद से पढ़ सकते हो, जैसे फोटो, जैसे वीडियो, जैसे साउंड, जैसे ग्राफिक्स, जैसे इस तरह का कुछ और मल्टीमीडिया डेटा इसे हम कहते हैं.
तो जावा में हम अक्षरों को, नंबरों को तो खैर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमें सीखना भी है, मगर हम इन चीजों को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हमें अपने सिलेबस में नहीं सीखना है, बट आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये सीख चुके हैं अपने से मेहनत करके, इंटरनेट से कंटेंट रिसर्च करके। तो हमारा डिस्कशन अभी सीमित रहेगा इसी में, जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं, अक्षरों और नंबरों, और उन्हीं अक्षरों और नंबरों को हम कैसे इस तरह से यूज करें कि सारा काम हमारा बन जाए। और इसी से संबंधित हमारा आज का क्लास है डेटा टाइप्स। तो let us find out the details over the internet. Now I'm going to share one screen, and there you can see, look, data types in Java. There are two types of data in Java. First is primitive data types, second is non-primitive data types. What are they? Let us see them in detail. Now, to understand these things in your mind, the topic that we discussed just now will help you. तो प्राइमिटिव डेटा टाइप किसे कहते हैं? द प्राइमिटिव डेटा टाइप्स इंक्लूड दीज थिंग्स एंड नॉन प्राइमिटिव डेटा टाइप्स इंक्लूड दीज थिंग्स। आई मीन क्लासेस, इंटरफेसेस एंड एरेज। क्लासेस हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, हम लोग क्लास बनाते हैं, इसके बारे में डिटेल आपको कुछ दिनों के बाद समझ में आएगा। इंटरफेस बहुत मामूली चीज है, इसके बारे में भी हमें बाद में पढ़ना है। एरे भी कुछ है जिसके बारे में हम लोग शायद क्लास 9 में कुछ डिस्कस कर पाए, अदरवाइज क्लास 10 में से हमें पढ़ना है। तो हमें अभी अपना जो डिस्कशन है वो सीमित रखना है इस पे फिलहाल, प्राइमिटिव डेटा टाइप्स। प्राइमिटिव डेटा टाइप्स का मतलब होता है बेसिक डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप का मतलब होता है वैसा बेसिक चीज जिससे और चीजें बनती हैं। उदाहरण के लिए, मान लो तुम्हें एक बहुत बड़ा 10 मंजिला इमारत बनाना है, you have to make a building, 10 स्टोरेज बिल्डिंग है ना। तो बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? अगर हम बेसिक लेवल पे जाके सोचे तो हमें चाहिए बालू, we need sand, सीमेंट, ईंटा यानी ब्रिक्स, और आयरन बार्स, छड़ वगैरह चाहिए। ठीक है, आप देखे होंगे कि कोई भी बड़ा बिल्डिंग या कोई भी छोटा बिल्डिंग या कोई बिल्डिंग आज के जमाने में इन्हीं चीजों से बनता है, ईंटा, बालू, सीमेंट, छड़, स्टोन चिप्स एंड ऑल। सो दीज ऑल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, दीज आर द बेसिक डेटा टाइप्स। उसी तरह से जावा में भी ये जो देख रहे हो ना, बुलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, आईएनटी, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये एक तरह से, yes, I'm back. So I was telling you that let me share the screen once again. And I can see what you can see. Yes, this one. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें उन बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार जावा में भी चीजों को बनाने के लिए हमारे पास बेसिक चीजें हैं। जिन्हें हम इन नामों से जानते हैं, बुलियन, कैरेक्टर, ये वो जो भी है। इसमें से हमने कुछ डेटा टाइप्स का इस्तेमाल किया है, बुलियन हमने नहीं किया है, कैरेक्टर भी नहीं किया है, ये सब आपको सीखना है। ये होता क्या है? तो चलो इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्राइमरी डेटा टाइप्स। 8 मुख्य प्रकार हैं प्राइमिटिव डेटा टाइप्स के। क्या है? बुलियन। बुलियन क्या स्टोर करता है? बुलियन में सिर्फ दो में से एक वैल्यू स्टोर हो सकता है, ट्रू, फॉल्स। बुलियन वेरिएबल जो होता है उसमें या तो हम ट्रू स्टोर कर सकते हैं या फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावे बुलियन वेरिएबल में कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते। बाइट डेटा टाइप में क्या स्टोर कर सकते हैं? बाइट डेटा टाइप इंटीजर का एक पार्ट है नंबरों को स्टोर करने के लिए। इसमें हम नंबर रख सकते हैं। कैरेक्टर, कैरेक्टर डेटा टाइप ये 2 बाइट जगह लेता है। इसमें हम कोई एक अक्षर रख सकते हैं, एक अक्षर, जैसे ए, जैसे बी, जैसे कोई एक सिंबल, जैसे कॉमा, जैसे फुल स्टॉप, कोई एक अक्षर। ना यू माइट बी वंडरिंग कि भाई एक अक्षर काहे रखेगा कोई? तुम रखो चाहे मत रखो, यहाँ व्यवस्था दिया हुआ है, यहाँ पर है।
आपको रखना है या नहीं रखना है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि वो अगर रखना है तो उसके लिए कोई जुगाड़ है कि नहीं, कोई व्यवस्था है कि नहीं, तो हाँ है, यही कैरेक्टर टाइप है। एक अक्षर सिर्फ इसमें आप रख सकते हो, ये ध्यान में रखना। सॉर्ट डेटा टाइप, ये भी नंबरों को रखने के लिए है। अब हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे बाइट और सॉर्ट में क्या अंतर वगैरह है, देखेंगे, शायद हमने देखा भी इससे पहले एक बार। आईएनटी डेटा टाइप ये भी नंबरों को रखने के लिए, लॉन्ग डेटा टाइप ये भी नंबरों को रखने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि बाइट, सॉर्ट, आईएनटी और लॉन्ग ये सब नंबरों को रखने के लिए है। तो एक नंबर को रखने के लिए इतना सारा डेटा टाइप क्यों है, उसके पीछे भी वजह मैं बताऊंगा। फ्लॉट ये भी नंबरों को रखने के लिए है, डबल ये भी नंबरों को रखने के लिए। अरे वाह, अक्षर को रखने के लिए सिर्फ एक है कैरेक्टर, नंबर को रखने के लिए इतना इतना व्यवस्था है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो तरह तरह के नंबरों से हमारा सामना होता है। उदाहरण, जैसे किसी का एज रखना है हमें, जैसे किसी का सैलरी रखना है हमें, जैसे किसी कंपनी का टर्नओवर रखना है हमें, जैसे पॉपुलेशन का काउंट रखना है हमें, ठीक है। तो ये सब अलग अलग चीज है। जैसे स्टेडियम में कितना भीड़ है ये रखना है हमें, जैसे सिनेमा हॉल में टिकट कितना बिकेगा इसका रिकॉर्ड रखना है हमें। तो ये अलग अलग उदाहरण है कि नंबर छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। जैसे किसी का एज, एज कोई आदमी का एज कितना रहेगा, 0 से लेकर के 150 साल तक ज्यादा से ज्यादा रहेगा। 150 साल का आदमी देखे हो कभी? नहीं, आज के डेट में नहीं पाया जाता। 110 साल, 15 साल, 17 साल सुने हैं हमने। यही रहता है मैक्सिमम एज एक्सपेक्टेंसी ऑफ एनी ह्यूमन, मैक्सिमम। जैसे सिनेमा हॉल में कितना टिकट बिकेगा, कितना भीड़ रहेगा, तो वो एक और एवरेज मीडियम नंबर है, 1000 में वो काउंट हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के नंबरों को रखने के लिए अलग अलग व्यवस्था इसलिए बनाया गया है ताकि अगर छोटा नंबर रखना है तो रैम में वो कम जगह ले, अगर बड़ा नंबर रखना है तो रैम कम है वो ज्यादा जगह ले। तो एफिशिएंट प्रोग्राम बनाने के लिए, ऑप्टिमाइज्ड प्रोग्राम बनाने के लिए, मेमोरी का सही इस्तेमाल हो सके, इसके लिए हम अलग अलग डेटा टाइप्स बनाते हैं। अब आइए डिटेल में यहाँ देखते हैं। डेटा टाइप क्या है भाई? डेटा टाइप दो तरह का होता है, प्राइमिटिव, नॉन प्राइमिटिव। प्राइमिटिव में बुलियन एक होता है, एक न्यूमेरिक होता है। बुलियन, बुलियन हो गया सीधा सीधी। न्यूमेरिक में दो चीज है, कैरेक्टर और इंटीजर। अरे यहाँ तो आप गड़बड़ बोल रहे हैं सर, आप तो बताए कैरेक्टर और नंबर अलग अलग होता है, मगर यहाँ तो नंबर में ही कैरेक्टर और इंटीजर ले ले रहा है। तो भाई ऐसा है कि बात को यहाँ पे समझो, अक्षर जो होता है वो कैसे बनता है कंप्यूटर में। मैंने आपको बताया है कि किसी भी अक्षर का एक न्यूमेरिक कोड होता है, जिस न्यूमेरिक कोड को हम बाइनरी में बदल के उस अक्षर को समझते हैं। वो सारे कोड भी मैं आपको दिखलाऊंगा। तो कोई भी अक्षर है, जैसे ए है, बी है, सी है, फुल स्टॉप है, प्लस है, माइनस है, हर एक अक्षर के लिए एक रेलेवेंट नंबर होता है। जैसे कैपिटल ए का रेलेवेंट है क्या, 65। लेट अस सी द कोड्स। आस्की कोड्स ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, ये लिखना है आपको। तो आप देखेंगे कि आपको दिखलाएगा, देखिए आस्की बाइनरी टेबल, कैपिटल ए का 65 है, बी का 66 है, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट दिखा रहा है। और आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल दिखलाएगा कि हर एक अक्षर जो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं, कीबोर्ड पे देखते हैं, या कंप्यूटर के स्क्रीन पे जहां भी देखते हैं, उन हर एक अक्षरों का एक अलग अपना बाइनरी कोड है। देखिए टेबल आ गया, ठीक है, आस्की बाइनरी कैरेक्टर टेबल। जैसे स्मॉल ए, उसका आस्की कोड है। आस्की का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की कोड आप डिटेल गूगल में देख सकते हो। तो यहाँ आप देखिए कि कितना सारा अक्षर है। इसमें सिर्फ एक ही अक्षर है क्या? खैर एक ही है, मगर एक पूरा लिस्ट भी है। चलिए आपको लिस्ट ही दिखलाते हैं। ये क्या कर रहा है यार, आस्की टेबल यहाँ देखते हैं, शायद यहाँ कुछ क्लियर दिखलाए। So here you could see, and before this